morning, students. I'm Ashish Gadpale, co-founder of APS Microtech Private Limited. Today we have a session that is on Salesforce. Okay, so we will learn about today what is Salesforce, how to get job in Salesforce, what are the modules there like Salesforce, administration, and development. And today we have an expert faculty who is working with the MNC companies with Pune. Rishikesh sir. So Rishikesh sir will explain you about in detail what is there. So if you have any question, you can ask, and also you can note the contact details for future references. Okay. So guys, enjoy the session, and I'm handing over to the Rishikesh sir. Rishikesh sir, welcome back. Yeah. Thank you. Ashish. Yeah. Good morning to all. Hello. Everyone is audible to me? Yes, sir. Yeah, audible. Yeah. Okay, good morning. So we will start the introduction of Salesforce CRM. Okay. All of you guys knows about the Salesforce CRM. What is mean by Salesforce CRM? Okay. So most of the industries required the Salesforce developer, Salesforce administrator. There is a huge demand on market is Salesforce. Okay. So first we will take the introduction. Okay. So Salesforce is a most popular CRM recently. It is a world first on-demand CRM in market. Okay, it was founded in March 1999 by Mark Benioff. He is the founder of Salesforce.com organization. Okay, and it was founded in 1999, but in market, the Salesforce CRM is launched in the year 2000. Okay, so it's basically a CRM. CRM stands for is a client relationship and management. ओके सो सीआरएम काम क्या करता है, हम लोग सीआरएम के थ्रू काम क्या करते हैं, ये चीज हम लोग को पढ़ना होता है. ओके सीआरएम का एक यहाँ पर मैंने एक फंक्शनलिटी दिया है. इट्स अ लो कॉस्ट लो रिस्क क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर सर्विस टू बाय एंड इट्स अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर. ओके सो ये सब कुछ जो चीजें मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख के दिया है, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाएगा अच्छे से. बेसिकली हम लोग सीआरएम यूज क्यों करते हैं, सीआरएम से आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा और जितने भी न्यू कस्टमर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन होते हैं उनका डेटा हम लोग एक जगह एट ओनली वन प्लेस हम लोग उसको कलेक्ट करके रखते हैं, हम लोग उस जगह से उसको मैनेज करते हैं. इस वजह से हम लोग सीआरएम यूज करते हैं. ओके सो सेल्सफोर्स सीआरएम में हम लोगों को कितने मॉड्यूल्स पढ़ना होता है, तो सेल्सफोर्स सीआरएम में टोटल 5 अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं. Salesforce administration, development, integration, lightning, it's a Aura component, and then LWC. Okay, so हम लोग 1 by 1 देखते हैं, ये सारा कुछ हमें पता चलेगा. Okay, but Salesforce.com is an organization. It was founded in 1999 by Mark Benioff, and it is launched in the year 2000 in market. Okay, so multi-tenant architecture. What is mean by multi-tenant architecture? Multi-tenant architecture means single person or many person can use the single resources at a time. Can use multiple person or many person can use these single resources at a time. So this is called as multi-tenant architecture. अब इसे मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर. ओके सो सेल्सफोर्स को मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल्सफोर्स बेसिकली क्लाउड एप्लीकेशंस है और इसे यूज करने का बेनिफिट क्या है. मार्केट में टोटल 2 कैटेगरीज की एप्लीकेशंस यूज करते हैं आईटी इंडस्ट्री में. पहला ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन, दूसरा ऑन डिमांड एप्लीकेशन. फर्स्ट वन इज द ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन एंड सेकंड इज द ऑन डिमांड एप्लीकेशन. सो ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या, जिसे आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में या जो भी कोई डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो उसमें आपको इंस्टॉल करना होता है. ऑन प्रीमाइसेस means it requires the installation first and then you have to use this kind of the application like C++, Java, .NET, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपने अभी तक के पढ़े या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए, है ना. हम लोगों को वो सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करना होता है, बाद में हम लोग उसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बराबर. बट Salesforce is a completely cloud-based application. Okay, it's an on-demand application. Salesforce के जैसा ही क्लाउड एप्लीकेशन हम लोग अभी भी यूज करते हैं. तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जीमेल.
जीमेल इज दी 100% क्लाउड एप्लीकेशन। आपको जीमेल को कहीं इंस्टॉल नहीं करना होता है, बराबर। इवन हम लोग ने अभी जो सेशन अटेंड किया है, इस सेशंस को हम लोग ने ऑनलाइन ही अटेंड करा है। हम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर इसके लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, बराबर। सो वैसे ही सेल्सफोर्स सीआरएम है, उसके लिए भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की गरज नहीं होती है। आप लोग ऑनलाइन बेसिस पे भी उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो व्हाट इज सीआरएम? तो सीआरएम स्टैंड्स फॉर CRM is the model to use to manage the organization's interactions, that is phone call, meeting, email and social media, and also with the customer and prospect positioning to sales, marketing and support। अब ये जो चीजें लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूं कि हम लोग CRM के जरिए जितने भी अमाउंट में ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों का डेटा एक साथ एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोग उसको एक ही जगह से मैनेज करते हैं। ओके, basically in Salesforce CRM different types of clouds are available in Salesforce। okay, जैसे कि सेल्स क्लाउड अवेलेबल है, सपोर्ट है, मार्केटिंग है ना। तो ये इससे अलावा भी हेल्थ क्लाउड भी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, ढेर सारे क्लाउड सेल्सफोर्स के पास में अवेलेबल है। अब इन क्लाउड के जरिए ये लोग काम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं सेल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंश्योरेंस एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उस इंश्योरेंस एप्लीकेशंस को मुझे सेल करना है मार्केट में। तो पहले क्या होता था कि हम लोग हर एक के शॉप में जाते थे या ऑफिस में जाते थे, उन लोग के साथ में डीलिंग करते थे एंड देन बाद में हम लोग उस प्रोडक्ट को सेल्स करते थे, बराबर। बट सेल्सफोर्स जब से मार्केट में आया, सेल्सफोर्स के जरिए ढेर सारे क्लाइंट सेल्सफोर्स के अवेलेबल हैं अभी भी मार्केट में। आपको नाम बता दूं, व्हाइट हेड जूनियर, बायजूस, ये सारे सेल्सफोर्स को यूज करते हैं। इनके सेल्स और सर्विस क्लाउड इनके यूज करते हैं। ओके, तब जाके मार्केट में इनका जो ग्रोथ है आप खुद देख रहे हो, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट इनकी आती है, बराबर। हर एक चीज ये धीरे धीरे कैप्चर करते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ काम किसके जरिए पॉसिबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेल्सफोर्स। ओके, सो सेल्सफोर्स के पास में खुद के क्लाउड्स अवेलेबल हैं, लाइक सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड के जरिए सेल्सफोर्स अपने प्रोडक्ट को, किसी के प्रोडक्ट को अपने जरिए उसको मार्केट में सेल कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में कैसे सेल करेगा सेल्सफोर्स, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने अलग अलग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर में हम लोग को डेटा अपना स्टोर करना होता है और उस डेटा के ऊपर में सेल्स टीम, सपोर्ट टीम काम करती है, तब जाके मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल आउट होता है। क्लियर हुआ? वैसे मार्केटिंग करने के लिए सेल्सफोर्स के पास खुद का मार्केटिंग क्लाउड अवेलेबल है। सेल्सफोर्स के पास खुद के मार्केटिंग क्लाउड अवेलेबल होने के वजह से वो इजीली मार्केटिंग कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, पहले आपने देखे होंगे सेल्समैन आते थे, अभी सेल्समैन नहीं आते हैं। अभी मार्केटिंग सारा कुछ ऑनलाइन होता है। इवन आप फ्लिपकार्ट से कोई एक बार एक ही चीज खरीदा होगा, लेकिन फ्लिपकार्ट में जब भी कोई नए ऑफर आते हैं आपको उनके मेल दिखेंगे, बराबर। और वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक बार आपने वो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर दिया, मतलब आप लोगों का जो लीड है वो फ्लिपकार्ट के पास चले गया। समझ में आया? तो इसलिए वो आपके मेल आईडी पे मेल भेजते रहते हैं। ठीक है, और वो मेल आते कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेल्सफोर्स सीआरएम। ये काम किसका है? सेल्सफोर्स सीआरएम का। ओके, तो कस्टमर को मैनेज करना, कस्टमर को 360 डिग्री व्यू से मैनेज करना, सो ये काम है सेल्सफोर्स सीआरएम का। समझ में आया? सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है अपना सेल्सफोर्स का एक हायरार्की मैंने बताया जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर ये हमारा salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन हैं, चैटर है, सेल्स क्लाउड है, data.com, सर्विस क्लाउड, force.com, ऐप एक्सचेंज, Heroku, Radian एंड database.com। ये सारे एप्लीकेशंस के जरिए सेल्सफोर्स अपना काम करता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे सेशन में। अब सेल्सफोर्स की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? सो सेल्सफोर्स इट्स अ CRM, उसके पास में खुद का सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है और अब उसके पास में खुद का मार्केटिंग क्लाउड भी अवेलेबल है। सेल्सफोर्स बेसिकली काम क्या करता है? सेल्सफोर्स में आप लोग एक कस्टमाइज एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हो। सेल्सफोर्स में आप एक कस्टमाइज एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि आप लोग सभी जन अगर इंजीनियर हो गए या ग्रेजुएशन किए हो गए आपने, जो भी कोई, बराबर, तो आपको अगर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो एक प्रोजेक्ट बनाने को हार्डली आपको कितना समय लगता है? एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने को, खुद का एक एप्लीकेशन अगर आपको जावा में, डॉटनेट में अगर क्रिएट करना है, सो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है जिसने कभी पढ़ा नहीं है जावा बट वो भी पढ़ रहा है कहीं से एंड देन वो उसको एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कम से कम 1.5 या 2 महीने का समय लगेगा, बराबर।
बट सेल्सफोर्स में ये सब काम 5 मिनट में हो जाता है। कस्टमाइज एप्लीकेशंस आप जस्ट 5 मिनट, बहुत हो गया। समझ में आया? बहुत ज्यादा इजीली एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आप कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। सारे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर में सेल्सफोर्स के अंदर काम है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स सीआरएम काम क्या करता है? बेसिकली हम लोग एक कस्टम ऐप डिजाइन करते हैं। इस कस्टम ऐप के जरिए हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं मार्केट में, और सेल्स करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इशू आते हैं जो कि हमें सॉल्व करके देना होता है, तो सेल्सफोर्स के पास खुद का सर्विस क्लाउड भी अवेलेबल है। इस सर्विस क्लाउड के अंदर उसके पास भी इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, लाइक केस, अपॉर्चुनिटी, फीडबैक, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इनके पास अवेलेबल है, जिसके जरिए सेल्सफोर्स कस्टमर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? मतलब एक बार जब कोई कैंडिडेट सेल्सफोर्स के साथ में जुड़ जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल्सफोर्स के साथ में जुड़ जाता है, तो उसका जो बिजनेस ग्रोथ रहता है वो डायरेक्टली डबल से ट्रिपल करके देता है। ये सेल्सफोर्स का गारंटी है, ओके। और वो क्यों करके देता है? क्योंकि उसके पास सारे कुछ क्लाउड अवेलेबल है मार्केट में। प्रोडक्ट को सेल्स करने से लेके, सर्विस देने से लेके, मार्केटिंग करने से लेके, सारे क्लाउड्स उसके पास में अवेलेबल है। क्लियर? सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट है अपना ऐप एक्सचेंज। अब ऐप एक्सचेंज क्या है एग्जैक्टली? आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के नाम सुने होंगे, आपने व्हाट्सएप यूज करे और कोई एप्लीकेशन भी आपने यूज करे होंगे, बराबर। सो सेल्सफोर्स में भी हमारे पास ऐप एक्सचेंज होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम हमारा खुद का कस्टम एप्लीकेशंस बना के सेल्सफोर्स के वेबसाइट पे उसे पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? आप बिंदास कर सकते हो, बट उस एप्लीकेशंस को पहले टोटल 7 या 8 टाइम्स उसको रिव्यू किया जाता है एक्सपर्ट्स के जरिए, और अगर वो रिव्यू होने के बाद सक्सेसफुल होता है तो ही आप अपना खुद का कस्टम एप्लीकेशन सेल्सफोर्स के ऐप एक्सचेंज पे भी डाल सकते हो। चाहे वो फ्री रह सकता है, चाहे वो पेड वर्जन रह सकता है। क्लियर हुआ? देन बढ़ते हैं हम लोग सेल्सफोर्स के एडिशंस की तरफ। अब सेल्सफोर्स के एडिशंस ढेर सारे हैं, ठीक है। अब जब आप लोग जैसे कि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लोग को अगर सेल्सफोर्स के ऊपर काम करना है तो सेल्सफोर्स ने फ्री डेवलपर एडिशन मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। फ्री डेवलपर एडिशन के साथ में सेल्सफोर्स 30 डेज ट्रायल अकाउंट का भी परमिशन देता है यूजर्स को। अगर आप जैसे जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको अगर सेल्सफोर्स सीआरएम पे काम करना है तो उनके पास टोटल 2 ऑप्शंस है। या तो वो 30 डेज ट्रायल अकाउंट क्रिएट करें, जिसमें 30 दिन का ट्रायल अकाउंट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में फ्री डेवलपर एडिशन अकाउंट बना सकते हो, जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। समझ में आया? मार्केट में ढेर सारे सीआरएम अवेलेबल है, ढेर सारे सीआरएम अवेलेबल है, आपको पता भी होगा उनके नाम, बराबर। बट सेल्सफोर्स सीआरएम मार्केट में क्यों चल रहा? उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन, इट्स अ क्लाउड एप्लीकेशन, इट्स अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है। क्लियर? उसके बाद में सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस अगर इंजीनियर्स को पढ़ना है या फिर कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को उसके काम करना है तो आपको उसको परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से जब तक मैं Amazon AWS पे जब काम किया था तो कुछ महीने के लिए वो लोग भी ट्रायल देते हैं, बट बाद में आपको पेड करना होता है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बराबर। बट सेल्सफोर्स सीआरएम का वैसा नहीं है। अगर आप 30 डेज ट्रायल अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपके पास फ्री डेवलपर अकाउंट बनाने की भी परमिशन सेल्सफोर्स ने दिया है, जो कि 365 डेज के लिए वैलिड रहेगा। उसके ऊपर में आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने सेल्सफोर्स पे अपना लॉगिन अकाउंट जनरेट कर चुका है और उसने उस अकाउंट पे 365 डेज तक के कंटिन्यूअसली एक भी दिन लॉगिन करके अगर नहीं देखा है तो वो कैंडिडेट सेल्सफोर्स उसका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। समझ में आया? लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने अपना लॉगिन आईडी बना के रखा है और उस आईडी पे उसने 365 डेज में है 8 महीने बाद तो भी उसने अगर लॉगिन करके देखा, एटलीस्ट 1 टाइम अगर उसने लॉगिन करके देखता है तो उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं करता है सेल्सफोर्स। ये भी फैसिलिटी वो यूजर्स को देता है। समझ में आया? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस है। कॉन्टैक्ट मैनेजर एडिशन, ग्रुप एडिशन, डेवलपर, पर्सनल, प्रोफेशनल, और इन सभी एडिशंस की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। इन सभी एडिशंस की जितने भी एडिशंस है मार्केट में, इनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस क्या? तो सेल्सफोर्स सीआरएम force.com प्लेटफॉर्म को यूज करता है। सेल्सफोर्स सीआरएम डेवलपमेंट के लिए force.com प्लेटफॉर्म यूज करता है, और इस force.com प्लेटफॉर्म में टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ना होता है। पहला एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है, बराबर।
सो एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने फर्स्ट टाइम अगर सुने होगे तो मैं बता दूं, एपेक्स में भी आप लोगों को वही सेम कंसेप्ट यूज करना होता है जो आपने सी सी प्लस प्लस जावा में यूज करते आए होंगे, कुछ ऐसे नए नहीं रहते हैं, बट आपको एपेक्स में थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, बराबर। उसके बाद सेकंड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम लोग यूआई डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम लोग यूआई डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो ये सब कुछ जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, एपेक्स प्रोग्रामिंग हम लोग को पढ़ना है, विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो ये सब कुछ किसके अंदर पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके लिए इन एडिशंस में से एक एडिशन यूज करते हैं जिसका नाम है डेवलपर एडिशन। इसमें से हम लोग यूज करेंगे डेवलपर एडिशन, जो कि हमारा फ्री डेवलपर एडिशन अकाउंट के अंदर रहता है, जिसपे हम लोग काम करते हैं। समझ में आया? इवन आप लोग भी सेल्सफोर्स सीआरएम अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद का लॉगिन अकाउंट बनाना होता है और सब कुछ आप उसी अकाउंट के अंदर कर सकते हो। और सेल्सफोर्स सीआरएम बेसिकली क्लाउड सीआरएम है, उस वजह से आप उसको कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, तो ये अपने एडिशंस है, database.com, परफॉर्मेंस एंड ऑल, ये आपको समझ में आएगी जब आप इस फील्ड में आ जाओगे सेल्सफोर्स सीआरएम पढ़ने के लिए, बराबर। अब आते हैं हमारे कोर्स के ऊपर। तो हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के कस्टमाइजेशंस होते हैं। हमारे पास टोटल 2 टाइप के कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है। पहला डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन एंड सेकंड इज द प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन। फर्स्ट इज द डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन एंड सेकंड इज द प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन। अब डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन मतलब क्या, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग के बारे में कोई मैं बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि इट्स अ डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशंस यूज करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ कस्टमाइजेशंस का काम है। क्लियर हुआ? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करना, टैब कैसे क्रिएट करना, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप, वर्कफ्लो, वैलिडेशन रूल, इसमें ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओनली कस्टमाइजेशन, ओके। और सेकंड है आपका प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट मॉडल पढ़ते हैं, डेवलपमेंट मॉडल में हम लोगों को डीएमएस स्टेटमेंट, एसओपीएल क्वेरीज, एसओएसएल क्वेरीज, वेब सर्विसेज, इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। ओके, तो हमारे पास इन डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिक, इनके बीच में हमारा डेटा मॉडल, बिजनेस लॉजिक और यूजर इंटरफेस। आपने अगर सुने होंगे एमवीसी पैटर्न, है ना, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये सारा कुछ इसके साथ भी कोरिलेट होता है। अब कैसे? तो सबसे पहले जो आप सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ आप कस्टमाइजेशंस करते हो, कॉन्फ़िगरेशंस करते हो, बराबर, ठीक है, तो वो कौन से टॉपिक यूज करोगे? इतने सारे टॉपिक्स हैं, इससे ज्यादा है सेल्सफोर्स में, मैं जस्ट यहाँ पर जगह नहीं था करके इतने लिमिटेड डाला हुआ है, बट हम लोग सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में इतने टॉपिक यूज करेंगे। और डेवलपमेंट में हम लोग विजुअल फोर्स पेजेस कैसे क्रिएट करना, विजुअल मतलब आपको जो दिखेगा, बराबर, जो हम लोग आंखों से यूआई देखते हैं, इट्स कॉल्ड एज विजुअल फोर्स पेजेस। तो वो विजुअल फोर्स पेजेस कैसे क्रिएट करना, वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं, force.com क्या होता है। आप जब भी कोई रिक्वायरमेंट देखोगे, किसी इंडस्ट्री की अगर रिक्वायरमेंट निकलती है, तो उस रिक्वायरमेंट में ये सारे आपको दिखेंगे कि कैंडिडेट को force.com आने को ना, उसे वेब कंट्रोल्स आने को ना, उसे विजुअल फोर्स पेजेस आने को ना, विजुअल फोर्स कंट्रोलर आने को ना, एपेक्स प्रोग्रामिंग आने को ना, वेब सर्विसेज एपीआई आने को ना, ये सारे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये सब कुछ जो हमें पढ़ना होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं force.com प्लेटफॉर्म के अंदर। क्लियर? अब आपसे अगर किसी ने पूछा कि सेल्सफोर्स सीआरएम के अलावा भी ढेर सारे सीआरएम अवेलेबल है मार्केट में, बट उन सीआरएम को छोड़ के आप सेल्सफोर्स ही क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उसका रीजन ये, बाकी जितने भी सीआरएम है उनके इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक, दीज आर ऑल सीआरएम आर ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस। आपको उन्हें पहले इंस्टॉल करना होता है, देन आप इसे यूज करते हो। सेकेंड ड्रॉबैक कि उन सीआरएम्स के पास में स्पेशली खुद का कोई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन सेल्सफोर्स के पास में खुद का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, जिसका नाम है force.com प्लेटफॉर्म। और उस force.com प्लेटफॉर्म के अंडर टोटल आपको सेल्सफोर्स 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। पहला एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एपेक्स के जरिए आप कस्टमाइज बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के जरिए आप अपना डायनामिक और अट्रैक्टिव यूआई डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सेल्सफोर्स के पास है, इस वजह से सेल्सफोर्स वर्ल्ड नंबर 1 फर्स्ट ऑन डिमांड सीआरएम एप्लीकेशंस बना हुआ है। क्लियर?
सो हमारे पास टोटल सेल्सफोर्स में 2 टाइप के आपको एप्लीकेशंस पढ़ना होता है, डिक्लेरेटिव एंड प्रोग्रामेटिक कस्टमाइजेशन। डिक्लेरेटिव में आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ना होता है। प्रोग्रामेटिक मतलब आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करना होता है। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने एक नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है सेल्सफोर्स डेटा मॉडल, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि सेल्सफोर्स के पास सेल्स क्लाउड अवेलेबल है, मार्केटिंग क्लाउड है ना, सर्विस क्लाउड अवेलेबल है। तो ये क्लाउड अवेलेबल है मतलब एग्जैक्टली क्या अवेलेबल है सेल्सफोर्स के पास? तो सेल्सफोर्स ने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जिनको बोलते हैं, उन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को सेल्सफोर्स ने क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कि सेल्स क्लाउड पे सेल्स से रिलेटेड ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहते हैं, उसमें आपके मिलेगा अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, कंपेन एंड अदर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। अब इन ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? तो इन ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टमर की, यूजर की डिटेल स्टोर होती है। समझ में आया? यूजर की डिटेल सारी की सारी स्टोर्ड होती है। और आपको अगर पता है कि अगर आपके पास आपका खुद का कोई प्रोडक्ट आपने अगर मैन्युफैक्चर करा है और उसे आपको मार्केट में अगर सेल करना है, तो आपके पास क्या रहने को ना, कस्टमर की डिटेल्स रहने को ना। समझ में आया? व्हाइट हेड जूनियर, बाइजूस, ये लोगों के पास क्या है? ये लोग सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड यूज करते हैं सेल्सफोर्स का। क्यों? क्योंकि इनके पास में लीड जनरेट करने के लिए ये लोग सेल्सफोर्स की हेल्प लेते हैं, जिसके जरिए सेल्सफोर्स इनको लीड जनरेट करके देता है। आपने देखे होंगे, आपके पास में मोबाइल होगा, एंड्रॉइड मोबाइल या जो भी कोई होगा, आपने बायजूस का एप्लीकेशन जस्ट एक 1 वीक के लिए ट्रायल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको वो अपनी डिटेल्स डालने बोलता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बराबर। तो सबमिट जैसे ही कर दिया किसी यूजर ने, तो वो डेटा किसके पास आ जाता है? सेल्सफोर्स के पास में आ जाता है। वो डेटा जैसे आप उधर में सबमिट करते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, एंड सबमिट करने के बाद उसकी पूरी डिटेल सेल्सफोर्स के अंदर आ जाती है। जैसे कि अकाउंट में सेल्सफोर्स स्टोर करता है कस्टमर की डिटेल, जैसे कि अकाउंट नेम, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेटिंग, उसका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, सारी कस्टमर की डिटेल्स वो स्टोर करता है। वैसे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट जो है, उसमें कस्टमर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्टोर होती है। उसका होम फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ऑफिस फोन नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, सारी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है। डन। उसके बाद में जैसे कि अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? कि कोई कस्टमर ऐसे रहते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, बट वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आइडिया देने वाला होता नहीं है, बराबर। तो सेल्स क्लाउड के जरिए सेल्सफोर्स सेल्स टीम को ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड करती है और उनके ऊपर काम करता है सेल्स टीम, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। समझ में आया? जो सेल्स टीम उन कस्टमर को समझा के देती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ आइडिया देती है, तब जाके वो जो पर्टिकुलर कस्टमर है, जो कस्टमर में कन्वर्ट होना चाहते थे, लीड में कन्वर्ट होना चाहते थे, वो विद द हेल्प ऑफ सेल्स क्लाउड के जरिए कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने अपने पास बना के रखे हैं। क्लियर? जैसे टास्क एंड इवेंट ऑब्जेक्ट उसके पास है। अगर किसी यूजर को टास्क अलोकेट करना है किसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तब वो टास्क एंड इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल सपोर्ट ऑब्जेक्ट उसके पास अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने, सपोर्ट इज नोन एज सर्विस बेसिकली, ओके। सो अगर किसी यूजर ने, मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ है और उसे वो यूज कर रहा है, 6-8 महीने बाद उस प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट आते हैं, बग्स आते हैं, तो वो कस्टमर क्या कर सकता है? वो केस रेज करता है। इवन आप लोग की भी अगर लैपटॉप खराब हो जाते हैं या मोबाइल खराब होते हैं, तो हम लोग कस्टमर केयर से कांटेक्ट करते हैं, बराबर। सेल्सफोर्स में भी ये एप्लीकेशंस दिया हुआ है कि सेल्सफोर्स में आपके पास केस नाम से एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसके जरिए कोई कस्टमर केस रेज कर सकता है और उसकी केस का जो भी सोल्यूशन रहेगा वो सोल्यूशन ऑब्जेक्ट के अंदर में उसको पता चलते रहेगा, वो ट्रैक कर सकता है आपका स्टेटस। ओके, उसके बाद में सेल्सफोर्स का खुद का डॉक्यूमेंट नोट है एंड अटैचमेंट ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स के पास में, इस ऑब्जेक्ट के जरिए आप सेल्सफोर्स के यूआई के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चीजें आप इंटरनल लेके आ सकते हो, चाहे वो इमेज हो सकते हैं, नोट्स एंड अटैचमेंट हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती है। तो ये सब कुछ आप विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है यूजर एंड प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ यूजर्स कैसे क्रिएट करना होता है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना होता है,
तो ये चीज भी हम लोग सेल्सफोर्स के जरिए परफॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स मतलब क्या? फॉर एग्जांपल नागपुर एक पर्टिकुलर एक सिटी ले लो। इस सिटी में अगर व्हाइट हैट जूनियर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो व्हाइट हैट जूनियर सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करती है, ठीक है, नागपुर रीजन के लिए। और उस प्रोफाइल के अंदर ढेर सारे यूजर्स रहते हैं। उन यूजर्स का काम रहता है कि आप लोगों तक के पर्टिकुलर जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने उनका एप्लीकेशंस डाउनलोड किया है ट्रायल वाला, उनके पास में पहुंचना और उनको वो प्रोडक्ट सेल करना, समझे? उसके लिए यूजर्स बनाए जाते हैं अलग अलग रीजन से। तो ये सब कुछ भी यूजर्स और प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के जरिए पॉसिबल होता है। उसके बाद है रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट। तो रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में मैंने एक एप्लीकेशंस बनाया हुआ है, उस एप्लीकेशंस में मुझे टोटल उस एप्लीकेशंस के 2 अलग अलग हिस्से जनरेट करना है। मतलब एक कस्टमाइज एप्लीकेशंस है और उस एप्लीकेशंस के अंदर आपको 2 अलग अलग पार्ट करना है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट आईटी से बिलोंग करते हैं, कुछ कैंडिडेट नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं। तो आईटी वालों को अलग व्यू दिखाना है उस कस्टम एप्लीकेशंस का, और नॉन आईटी कैंडिडेट जितने हैं उनको अलग व्यू दिखाना है। तो आप उसके लिए यूज करेंगे रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट एंड शेड्यूल ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट एंड शेड्यूल ऑब्जेक्ट के जरिए आप लोग के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। उसको शेड्यूल ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम इंटरवल उसे दे सकते हो। जैसे कि आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है। इवन अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर लो तो आपका एडवर्टाइजमेंट का पॉपअप मेनू आ जाता है। तो उसे आप खुद भी शेड्यूल कर सकते हो कि कितने इंटरवल टाइम सेकेंड्स के बाद में आपका वो जो भी एप्लीकेशंस रहेगा उसके ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट शो होने को होना। ओके, तो ऐसे ढेर सारे ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के पास में बनाए हुए हैं और जिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेल्सफोर्स मार्केट में नंबर 1 बना है। ओके, तो ये सब कुछ सेल्सफोर्स के पास में अवेलेबल है। ये बाकायदा उसका हायरार्की मैंने दिया है। अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट से रिलेटेड लीड रहता है, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट एंड केस। बराबर, एक अकाउंट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले डेटा स्टोर होता है कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसे लीड में कन्वर्ट करने का काम रहता है। तो लीड में कन्वर्ट कैसे होती है? जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में बेचना है, तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं कंपेन करूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं कंपेन करूंगा। कंपेन इन द सेंस टीवी मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग कर सकता हूं मैं। तो ये सारी मार्केटिंग, ये सारे कंपेन हम लोग करेंगे, जिसके जरिए हमारे पास क्या मिलेगी? हमें एक लीड मिलेगी। उस लीड को हम लोग को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। लीड इज नथिंग बट द कस्टमर। लीड एक ऐसा पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, जिसने इंटरेस्ट शो किया कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ। उस लीड को कन्वर्ट करने का काम रहेगा सेल्स टीम का, और अगर उसने कन्वर्ट कर दिया तो वो बन जाती है उसकी अपॉर्चुनिटी। डन। अपॉर्चुनिटी के बाद में आपका रहता है अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल, जो कि आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड रहता है, जिसमें कॉन्टैक्ट लेवल का डिटेल सब कुछ रहता है कस्टमर से। और अगर वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लिया है, उसके बाद में अगर वो 6-8 महीने उसे यूज करता है, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो उससे रिलेटेड आप केस रेज करते हो विद द हेल्प ऑफ केस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो ये पूरा हायरार्की रहता है सेल्सफोर्स का। ऐसे ही सेल्सफोर्स काम करता है। क्लियर? सो ये हायरार्की है। फिलहाल आपको ये हायरार्की इतना लंबा चौड़ा समझेगा नहीं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ इंप्लीमेंट करके जब बताऊंगा तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्लियर? सो अगर आपको salesforce.com पे अगर काम करना है तो सबसे पहले आपको उस पर लॉगिन अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए आपको URL पे टाइप करना है developer.salesforce.com, जिसके जरिए आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंपनी डिटेल्स, यूजर नेम, ये सब कुछ डाल के साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, जिसके जरिए सेल्सफोर्स आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा। उस वेरिफिकेशन लिंक को आपको वेरीफाई करके अकाउंट के अंदर लॉगिन होना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक डाउट लोगों के दिमाग में ये रहता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहे फ्रेशर्स हो या वो चाहे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो, उन लोगों के माइंड में एक प्रॉब्लम रहता है कि सर मार्केट में अभी लेटेस्ट में हम लोग जो सुन रहे हैं लाइटनिंग चल रहा है, मार्केट में अभी लाइटनिंग चल रहा है, ऐसा लोग बताते हैं, इसलिए आप लोग भी सुनते हो, बराबर। बट एक्चुअल में क्या चल रहा है ना, तो जो लेटेस्ट में हमारे जैसे जो रियल टाइम काम करते हैं ना, ये लोग ही
हम लोग ही आपको अच्छे से ये चीज बता सकते हैं। ओके, और फिर आपके डाउट्स ऐसे भी रहेंगे कि सर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन पढ़ने से हो जाएगा क्या? मैं बोलूंगा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वो क्यों होगा उसके भी रीजंस, उसके भी क्वेश्चंस के आंसर अपने पास में अवेलेबल है। बट अगर आपको सेल्सफोर्स को यूज करना होता है, अगर आपको उसे यूज करने की इच्छा है, तो आपको सबसे पहले उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ URL पे आपको टाइप करना होता है developer.salesforce.com एंड देन /sign up, जिसके जरिए आप डायरेक्टली साइन अप फॉर्म के ऊपर जा सकते हो, जहां आप अपना अकाउंट बनाओगे उसे आप यूज करोगे। अब सेल्सफोर्स के पास में अकाउंट बनाने के बाद टोटल 3 डिफरेंट इंस्टेंसेस अवेलेबल है। पहला डेवलपर एनवायरनमेंट, जिसमें सेल्सफोर्स अपने सारे कोड जो होते हैं force.com प्लेटफॉर्म के अंदर, जो हम लोग एपेक्स प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, इस एपेक्स प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग सारा कुछ डेवलपमेंट करते हैं। सेकेंड है सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रोडक्शन में, देखो अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे पास अगर कुछ चीज डेवलप करने के लिए आया है, तो मैं डायरेक्ट उसको कभी भी लाइव नहीं करता हूँ। हम लोग कभी भी उसको लाइव नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, हम लोग सैंडबॉक्स पे उसको पहले क्रिएट करते हैं। सैंडबॉक्स लेवल पे हम लोग उसे चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में हम लोग उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं, जिससे वो प्रोडक्शन लाइव होता है, जिससे वो कोड जो है वो लाइव होता है, यूजर्स को, नंबर ऑफ पीपल्स को दिखना वो चालू होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले सेल्सफोर्स में आप कोई भी कोड डेवलप करोगे, डिजाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ force.com प्लेटफॉर्म के जरिए, उसे आपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट बराबर काम कर तो रहा है या नहीं कर रहा है, देन बाद में आप उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाते हो। ये सेम हायरार्की हर एक टेक्नोलॉजी में चलता है। इवन जो लोग जावा पे भी वर्क करते होंगे, उन लोगों को भी ये फॉलो करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली वो लोग भी प्रोडक्शन में मूव नहीं कर सकते अपना कोड, यूएटी पे चलाते पहले, है ना। उसके बाद जैसा वो यूएटी रहता है, वैसा हमारे पास में यहाँ सैंडबॉक्स होता है। ओके, देन बाद में हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसको रिलीज करते हैं। तो ये टोटल 3 इंस्टेंस टाइप्स है सेल्सफोर्स के अंदर, जिसे हम लोग को फॉलो करना होता है। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन मैक्सिमम होता है सैंडबॉक्स के ऊपर, है ना। विच सैंडबॉक्स कैन बी यूज इनसाइड योर प्रोजेक्ट। तो सैंडबॉक्स अलग अलग रहते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं। छोटी कंपनी है तो कुछ और सैंडबॉक्स यूज करेगी, अगर जिस कंपनी में एम्प्लॉय मैन पावर ज्यादा है तो वो लोग कोई दूसरा सैंडबॉक्स यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे जब भी सेशन स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। सो यहाँ तक के था मेरा सेल्सफोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। बट आपको ये पीपीटी से ज्यादा मुझे और एक चीज समझाना है, जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो ये एक मेरा नोटपैड वाला एक डॉक्यूमेंट है, जिसे मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ था। पीपीटी से ज्यादा अच्छा, ज्यादा कन्वीनियंट मुझे ये लगा आपको समझाना, इसलिए मैंने ये भी बना के रखा है। बेसिकली जिनको भी क्लाउड कंप्यूटिंग और सेल्सफोर्स सीआरएम पे काम करना होता है, उनके लिए तो पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज मीन बाय क्लाउड। व्हाट इज मीन बाय क्लाउड। सो क्लाउड का डेफिनेशन बताते समय लड़के लोग 2-3 लाइन का डेफिनेशन बताते हैं, बट उतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बता के मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्लाउड इज नथिंग बट द इंटरनेट। समझ में आया? बेसिकली मार्केट में 2 कैटेगरीज की एप्लीकेशंस काम कर रही है, जैसे कि ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस। कुछ इंडस्ट्रीज ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस पे काम करती है, और ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस पे अगर उन्हें काम करना है तो सबसे पहले उनको लगता है प्री इंस्टॉलेशन। समझ में आया? आप लोगों को उसको पहले इंस्टॉल करना होता है, बाद में आप लोग उसे यूज करते हो। और ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम मैंने लिख के दिए। आप ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो एंड देन बाद में यूज करते हो। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, बाद में यूज करना होता है, उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बराबर। सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है कि उसको पहले आपको इंस्टॉल करना है अपने लोकल डिवाइसेस में। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि जो भी लोकल डिवाइस रहेगा, वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद सपोर्ट भी करने को होना, है ना। नहीं तो ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया लेकिन सॉफ्टवेयर चालू नहीं हो रहा। उस वजह से क्या होता है कि आपके कस्टमर और बिजनेस लूज होना चालू होता है। कस्टमर लूज होना चालू हो गए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है अपग्रेडेशन प्रॉब्लम। आपने देखे होंगे, आप जब जावा यूज करते थे या C++, जो भी वर्जन आपने यूज करे होंगे, अलग अलग वर्जन इसके निकलते रहते हैं 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। बराबर। तो ये समथिंग उसके ड्रॉबैक है ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस यूज करने के। अब हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग ऑन डिमांड एप्लीकेशन, इट्स नोन एज क्लाउड एप्लीकेशंस, जिसको आपको कोई इंस्टॉलेशन की गरज नहीं लगती है। आप
आपको उसे अगर यूज करना है तो सिर्फ आपके सिस्टम में आपका ब्राउजर रहने को ना, ब्राउजर एनी काइंड ऑफ ब्राउजर चलेगा, गूगल क्रोम, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, कोई भी ब्राउजर, और सिर्फ आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस रहने को ना, तभी जाके आप ऑन डिमांड एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देके रखा है मैंने, 100% Gmail is the 100% cloud applications. Okay, so there are different cloud vendors are available in the market. Amazon, Salesforce.com, Oracle, IBM, Google, ढेर सारे, और ये सभी नाम आप लोग ने सुने हैं, बराबर। बट इन क्लाउड वेंडर्स में से Salesforce.com को इतना ज्यादा मार्केट में क्यों पसंद किया जाता है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। उसके कुछ रीजंस है, वो क्या है वो भी देखते हैं। बेसिकली Salesforce.com इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1990 में स्टार्ट किया मार्क बेनियोफ ने। इट्स अ प्योरली क्लाउड सर्विसेज, जिसके अंदर 3 क्लासिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब भी आप कोई क्लाउड से रिलेटेड बात करोगे तो ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको हर बार दिखेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बट बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अगर किसी कैंडिडेट को मैं पूछता हूँ तो वो कुछ ना कुछ बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा नहीं कुछ, बट वो रिलेटेड नहीं बोलेगा। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, तो एक पर्टिकुलर ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं हमारा Salesforce CRM, इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ CRM एप्लीकेशन, जो कि इसके जरिए हम लोग हमारे कस्टमर जो कि ओल्ड रहेंगे, जो न्यूली कस्टमर रहेंगे, उनका डेटा मैनेज हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ Salesforce CRM। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो Salesforce का जो एडवांटेज है, जिस वजह से वो मार्केट में नंबर 1 बना है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि Salesforce के पास में खुद का Force.com प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको Salesforce प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला है एपेक्स प्रोग्रामिंग, जिसके जरिए आप अपना बिजनेस लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, और सेकेंड है विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग, जिसके जरिए आप अपना अट्रैक्टिव और डायनामिक UI डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया? तो ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि Salesforce के पास में खुद का Force.com प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बाकी जितने भी CRM मार्केट में अवेलेबल है, उन CRM के पास में खुद का प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मार्केट में उन्हें यूज करना अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप लोग देखे होंगे मार्केट में सबसे पहले जब Salesforce आया, इन्फोसिस पहले यूज नहीं करती थी, बट अभी कुछ महीने पहले इन्फोसिस के पास में भी Salesforce के ऊपर प्रोजेक्ट आ गए। ठीक है, जितनी भी MNCs है सारी की सारी Salesforce में मूव ऑन हो रही है। ओके, द नेक्स्ट है, थर्ड अपना सर्विसेज है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है क्लाउड सर्वर्स का। तो जो सर्वर होते हैं Salesforce के, वो भी क्लाउड पे ही अवेलेबल है। तो देयर आर 3 डिफरेंट रीजन में Salesforce के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, नॉर्थ अमेरिका रीजन, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन। अब हम लोग कहाँ आते हैं? हम लोग आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। समझ में आया? तो हम लोग का जो भी अकाउंट हम लोग जो बनाएंगे, Salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग क्रिएट करेंगे, वो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन के अंडर बनेगा। ओके, और अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये चेक करके बता सकते हैं क्या कि आपने जो लॉगिन आईडी, जो आपने लॉगिन अकाउंट Salesforce.com पे क्रिएट करके रखा है, वो कौन से सर्वर पे बना के रखा है? हाँ, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं। हम लोग सारा चीज Salesforce के अंदर खुद का चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप चेक नहीं कर पाओगे Salesforce में, सारा फैसिलिटी उसने दिया है। सो हम लोग आते हैं अपने कोर्स के ऊपर। तो हमारा जो कोर्स है, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन और कंसल्टिंग और एडमिन, ये जो जिसको मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल नाम दिया है, जिसमें हम लोग कोई भी कोडिंग का सेक्शन नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, कंसल्टिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले ऑन क्लासिक और लाइटनिंग प्लेटफॉर्म पे। ओके, सेकेंड जो कि हमें पढ़ना है डेवलपमेंट मॉड्यूल, जिसे हम लोग कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसमें मैं आपको डेवलप करना सिखाऊंगा, जिसमें आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, जिसमें आपको कोडिंग का पार्ट है, और वो कोडिंग आपको करना है Force.com प्लेटफॉर्म के अंडर। क्लियर हुआ? सो ये थे अपनी क्लाउड सर्विसेज, और ये अपने कोर्स से डिटेल चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है अदर CRM applications in the market. So there are different types of CRM applications in the market, like Sugar CRM, PeopleSoft, Siebel। आपने नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है ना? नहीं सुने होंगे तो पता करो, तो यही नाम मिलेगा आपको। ये जितने भी CRM हैं, ये मार्केट में अभी भी यूज होते हैं। आपने Zoho का भी नाम सुना होगा, ZOHO, Zoho, है ना?
ये भी सीआरएम मार्केट में अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि ये सीआरएम मार्केट में यूज नहीं होता है, बट इनके पास खुद का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है आज भी। और ये सारे के सारे सीआरएम ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, इन्हें पहले आपको इंस्टॉल करना है, बाद में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस वजह से Salesforce CRM मार्केट में नंबर 1 बना, क्योंकि Salesforce CRM बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन क्लाउड सर्विसेज। सेकंड, उसके पास खुद का force.com प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उसके पास में उस प्लेटफॉर्म के अंदर टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला एपेक्स, जिसके जरिए वो बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर सकता है, दूसरा विजुअल फोर्स, जिसके जरिए वो यूआई डिजाइन कर सकता है। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है Salesforce, तो क्यों ना Salesforce CRM ही यूज करें। इसीलिए मार्केट में Salesforce CRM इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं आज के डेट में। डन। सो मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपना व्हाट इज Salesforce लाइटनिंग। बहुत से कैंडिडेट आप लोग में से भी ऐसे होंगे कि सर लाइटनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, और लाइटनिंग पे क्यों इतना ज्यादा डिमांड है आज के डेट में। बट मैं आपको बता दूं कि 2023 ये चल रहा 2021, इन द ईयर 2023 तक के Salesforce में अगर आपको लाइटनिंग नहीं भी आता है, तब भी आप आईटी में जा सकते हो। आफ्टर 2023 पूरे प्रोजेक्ट लाइटनिंग LWC पे मूव होना चालू हो जाएंगे, अभी से होना चालू हो रहा है। समझ में आया? तो लाइटनिंग बेसिकली है क्या, इसके जरिए क्या होता है। तो लाइटनिंग इंक्लूड्स लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क एंड सम एक्साइटिंग टूल फॉर द डेवलपर, जो कि आपको रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस बना के देने के लिए काम में आता है। समझ में आया? इस वजह से मार्केट में Salesforce लाइटनिंग की डिमांड अभी इतनी ज्यादा है। समझ में आया? तो लाइटनिंग जस्ट एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ऑरा कंपोनेंट आपने नाम सुने होंगे, उसे हम लोग को यूज करना होता है लाइटनिंग के अंदर में, ठीक है, जिससे हम लोग अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बना के डेवलप कर सकते हैं और अच्छा चीजें, और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप डिवाइसेस एप्लीकेशंस, वो सब कुछ अपना बनता है लाइटनिंग में। बट उनके पीछे भी जो लॉजिक लगाते हैं, कस्टमाइज लॉजिक जो लगाते हैं हम लोग, वो विद द हेल्प ऑफ एपेक्स प्रोग्रामिंग के जरिए ही लगता है। क्लियर? सो ये था मेरा Salesforce का ओवरऑल इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग Salesforce एडमिन में कवर करने वाले। तो Salesforce एडमिन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप, ईमेल टेम्पलेट, वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, डेटा लोडर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक हम लोग को Salesforce एडमिन में पढ़ना होता है, और इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर इंटरव्यूज में क्वेश्चनिंग होती है। और वो क्वेश्चनिंग क्या होती है, ये भी चीजें मैं साइड बाय साइड बताते रहता हूँ, ठीक है, और आपको उसको लिखते रहना है। नोट्स में दिया है ऑलरेडी सारा कुछ, बट आपको नोट डाउन अगर करना है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग डेवलपमेंट मॉडल पढ़ने वाले, डेवलपमेंट मॉडल में हमें पहला तो पढ़ना है force.com प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपके क्लियर रहने को ना नहीं है, हम लोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है सब प्रोग्राम, कलेक्शन, SOQL और SOSL। अब आपको ये SOQL और SOSL का नाम सुन के थोड़ा अजब गरीब लग रहा होगा, बट आपने SQL जो नाम सुने, SQL आपने यूज करें ऑलवेज, बस Salesforce के पास में Salesforce ने हर एक चीज खुद का क्रिएट करके रखा हुआ है, वो किसी और का चीज बिल्कुल यूज नहीं करता है। इसीलिए उसने खुद का Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज बना के रखा हुआ है। Salesforce ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज उसने डिजाइन करके रखा है, जिसे हम लोग यूज करते हैं डेटा फेच करने के लिए। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना होता है DMS स्टेटमेंट। DMS स्टेटमेंट में हम लोग इंसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, अपडेट, मर्ज, ये सारे DMS स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है Salesforce में तो वो है ट्रिगर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो कि है ट्रिगर। आपके जब इंटरव्यू शेड्यूल हो गए फ्यूचर में, है ना, तो आपको सीधा सीधा इंटरव्यूअर बोलता है कि आपका स्क्रीन शेयर करो और आप ट्रिगर का कोड लिख के बताओ, जो भी वो क्वेश्चन देगा उसका। तो आपको ट्रिगर आने को ही होगा 100%। नेक्स्ट है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल 8 अलग अलग टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं Salesforce डेवलपमेंट में। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन में। तो Salesforce इंटीग्रेशन में हमारे पास टोटल 2 टॉपिक है, एक वेब सर्विसेज और दूसरा जेसन। वेब सर्विसेज बस एक वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि एकदम छोटा सा टॉपिक है। वेब सर्विसेज भी खुद में एक सबसे बड़ा टॉपिक है। आप लोगों को इंटीग्रेट कैसे करना है, कस्टमाइजेशंस कैसे करना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कैसे करना है अपने Salesforce के UI में, ये सारी चीजें वेब सर्विसेज के अंदर पढ़ाई जाती है।
जिसमें इंटीग्रेशंस के लिए हम लोग जेसन फॉर्मेट को यूज करते हैं। क्लियर? सो ये था सेल्सफोर्स से रिलेटेड सारा कुछ इंट्रोडक्शन, एंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आशीष सर, हेलो। यस सर, यस सर। सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ यस सर। सर लास्ट वाला स्क्रीन शेयर करके रख दीजिए बस, आपका वो थैंक यू वाला जो स्क्रीन था, या फ्रंट वाला भी स्क्रीन शेयर करके रख सकते हैं। ओके सर, क्वेश्चन था एक स्टूडेंट की तरफ से इसमें कि सर जॉब के एक्सपेक्ट्स क्या है इसमें, कि कौन से टाइप के मतलब जॉब्स लगते हैं और क्या जल्दी जॉब्स है मार्केट में, या ज्यादा से ज्यादा जॉब्स है सेल्स फोर्स? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन की तरफ से। ओके, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन रहने को भी होना। ओके, और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक टेक्नोलॉजी पढ़ने के पीछे उसका मेन एम यही रहता है कि सर मैं ये टेक्नोलॉजी पढ़ तो लूंगा लेकिन मुझे जॉब कैसे लगेगा। बराबर। और आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स सीआरएम में अकेला पढ़ाता हूँ, ऐसे ढेर सारे ट्रेनर अवेलेबल हो गए, बट उनके पास जब कैंडिडेट पढ़ता है तो पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो उनको नहीं पता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास, मैंने जितनों को भी अभी तक के ट्रेन किया है, सारे कैंडिडेट के प्रोफाइल में अभी भी शेयर कर सकता हूँ स्टूडेंट को। उनके कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। मेरे सारे लड़के मैक्स टू मैक्स प्लेस होते हैं परसिस्टेंट नागपुर, और मैं उन्हें 100% बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल जॉब लगा के नहीं दूंगा। मेरा सबसे बोलना यही रहता है कि मैं आप लोगों को जॉब लगा के नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जॉब लगा के इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं आपको उस लायक ही बना देता हूँ कि आप खुद ही लग जाते हो जॉब पे। ठीक है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से आपको आंसर देना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन होगा, कौन से टॉपिक पे कम क्वेश्चन होगा, ये चीज भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जो मैं नोट प्रोवाइड करूंगा, मेरे नोट्स के बाहर का एक भी क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद में जॉब, जैसे कि आप बोल रहे हो जॉब, तो आपको बता दूं कि आपको सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से नहीं होता है, या फिर आपको डेवलपमेंट पढ़ने से नहीं होता है। आप जब तक के सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन, ये तीनों मॉडल जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको जॉब का गारंटी मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा। समझ में आया? तो आपको पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज, कि अगर आपको सेल्सफोर्स सीआरएम के अंदर आना है, ये चीज पढ़ना है, तो आपको खुद को, जो अपना कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, वो ड्यूरेशन आपको 100% एफर्ट्स लगाना है, खुद को प्रैक्टिस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने को ना कि मैंने आज जो चीज पढ़ा दी आप 2 दिन बाद उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और जिस दिन मैं आपका रिज्यूम अप करता हूँ, मतलब हमारा जब कोर्स ड्यूरेशन खत्म हो जाता है और आप लोगों के रिज्यूम जब मैं अप करूंगा नौकरी पे इधर उधर, तो दिन भर में आपको 30 से 40 कंपनी के कॉल आते रहेंगे। आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है और आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये भी चीज मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? मार्केट में दूसरी एक और एक इम्पोर्टेंट बात ये मुझे करना था कि कभी भी जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग मार्केट में एकदम से हवा बन जाती है, उसके पीछे मत भागिए। ये मेरा सजेशन रहेगा स्टूडेंट को। मींस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट मैंने देखा, मेरे को भी पूछते हैं लोग क्वेश्चन कि सर लाइटनिंग पे काम कराओगे क्या आप? बराबर। बट मैं, मेरा बोलना उन लोगों के लिए ये रहेगा कि आप अगर सेल्सफोर्स में आना चाहते हो तो आप लाइटनिंग डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना ही को ही होना। जो भी developer है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही रहता है पहले। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको आने को ना, डेवलपमेंट आपको आने को ना, इंटीग्रेशन आपको आने को ना, देन बाद में आप लाइटनिंग और कंपोनेंट पे और एलडब्ल्यूसी पे जाओगे, तब आपके दिमाग में कुछ जाएगा कि नहीं यार ये चीज ऐसा होता है। समझ में आया? ओके सर। सर हम लोग क्वेश्चंस थोड़े कंटिन्यू करते हैं। प्रशांत सर वांट्स टू टेक 5 minutes and later we will continue the questions. Please stay connected. Prashant, can you please? Thank you.
थैंक यू। Guys, if you have questions, please ask, please discuss. Sir, one of the question is there from Karthik. Karthik saying, sir, what is the high package of in this? What is the time duration for this course? Please check in chat box, sir. Yeah, just Otherwise, I will read. Don't worry. Okay. okay. What is the time duration of this course, and what is the high package of this? Okay. So कार्तिक और सभी को मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सेल्सफोर्स में 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस शो करते हो, अगर आप सेल्सफोर्स में 3+ एक्सपीरियंस शो करके अगर इंडस्ट्री में जाते हो, तो अभी आज के रिसेंट सिनारियो के हिसाब से आपको 12 लाख रुपीज पैकेज दे सकता है, नियर अबाउट 10 to 12 लाख रुपीज 3+ एक्सपीरियंस शो करके अगर जाते हो तो। ओके, और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स लेवल पे 3.5 to 4, इन बिटवीन 3.5 to 4 ये पैकेज आपको मिल सकता है एज अ फ्रेशर्स लेवल ऑन सेल्सफोर्स CRM। ओके, मैं ज्यादा बड़े सपने किसी को नहीं दिखाता हूँ यार, क्योंकि मैं तो बोलने के लिए क्या, मैं तो बोल दूं कि इतना पैकेज मिल सकता है फ्रेशर्स को 5 लाख 5.5 लाख, बट मिलेगा, बट उस लायक उसको नॉलेज गेन करना है पहले तो, है ना। और आप लोग अगर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस दिखा के जाते हो तो आपको 4 के ऊपर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि 4 के नीचे ही मिलेगा। 1 साल का इंटर्नशिप या जो भी इंटर्नशिप का आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंटर्नशिप ही नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ही नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे तरफ से आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट भी रहेगा, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया है ऐसा आप बता सकते हो, क्या काम किया है ये सारा कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, सो दूसरा और कोई किसी का क्वेश्चन, और अपना जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ये कोर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन ये सारा चीजें कंप्लीट कर दूंगा। डेली क्लास रहते जाएगा मंडे टू सैटरडे, सर के साथ डिस्कशन होगा वैसे टाइम से रिलेटेड वगैरह, बट अगर हम लोग डेली क्लास लेते हैं मंडे टू सैटरडे तो हम लोग का 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस सर। सर स्टूडेंट अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं लाइक जावा, पाइथन, तो आपको पता होगा सबसे पहले हमको बेसिक स्टार्ट से कोड करना होता है, कम से कम 6 महीने तो लगता है हमको आईटी में एंट्री करने के लिए। बट इन केस ऑफ सेल्सफोर्स लाइक वी कैन लर्न सेल्सफोर्स इन 2 मंथ एंड वी कैन गेट जॉब। मतलब जॉब लेने के हिसाब से अभी आपको करंट में पता है मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि जॉब भी थोड़े नंबर ऑफ कम हो गए। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, जो अगर मैं ETC से बिलोंग करता हूँ या मैं अगर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करता हूँ, है ना, तो हमारे लिए और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना। बट अगर हम लोग सेल्सफोर्स की तरफ जाते हैं तो हमारा मतलब हम लोग आईटी में एंट्री कर सकते हैं। और जब आप आईटी में एंट्री करते हो हमारे पास में नंबर ऑफ वेज ओपन हो जाते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ मैं सेल्सफोर्स में ये भी कर लूं तो मुझे ये भी आगे मिलेगा इस तरीके से। और पैकेज भी इसका नॉर्मल जो कोडिंग का जो पैकेज होता है पाइथन जावा से, इससे बेटर ही रहता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम मंथन एंड ऋत्विक। Ritvik, the cost of this course, you have to call the number. Okay, Ritvik. Okay, sir. For course price, you have to call on the number. Number was mentioned. Okay, I'm mentioning in the chat box as well. Manthan saying what type of designation is offered means designation name. अगर आप एक्सपीरियंस दिखा के जाते हो तो आपको सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर का डेजिग्नेशन मिलेगा। अगर आप फ्रेशर्स लेवल पे जाते हो तो जूनियर सेल्सफोर्स डेवलपर करके रहोगे। ओके, यस गाइस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क योर डाउट्स। और आपको एक चीज बता दूं कि सेल्सफोर्स CRM सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट पर्सन सेल्सफोर्स CRM पढ़ सकता है। ठीक है, या वो सिविल इंजीनियर से बिलोंग करता है, या मैकेनिकल, या इलेक्ट्रिकल, या BSc या BCA इन कंप्यूटर साइंस, BSc IT या प्लेन BSc, वो भी कैंडिडेट को सेल्सफोर्स CRM वो भी कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब लगता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास में 2 कैंडिडेट ऑलरेडी सिविल वाले हैं जो नागपुर परसिस्टेंट में अभी है। ठीक है, सो मेरा बोलना ये रहेगा, मेरे बोलने से अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने से अच्छा आप खुद एक चीज ट्राई करना खुद के लेवल पे। आप आज आप में से किसी ने तो भी अगर उसको लग रहा है कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, सेल्सफोर्स पे naukri.com पे जाइए, अपना नौकरी में अकाउंट बनाइए,
और उस अकाउंट में 3+ एक्सपीरियंस शो करिए आप खुद का, ठीक है। और बाद में, कल के बाद में देखना आपको कितने कॉल चालू हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी पे बेसिकली वो लोग भी स्किल्स देखते रहते हैं। आप अगर स्किल्स से मैच हो गए तो आपको वो लोग इतने ज्यादा कॉल करेंगे, इतने ज्यादा इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, आपने सोचे नहीं होंगे कभी आप इन्फोसिस में इंटरव्यू दे सकते हो, आप इन्फोसिस में दोगे। टीसीएस, एचसीएल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, केसॉल, ढेर सारी कंपनीज है जो सेल्सफोर्स में मूव ऑन हो चुकी है। ओके, सो आप लोगों को बता दूं कि जॉब के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गूगल पे सिर्फ सर्च करिए सेल्सफोर्स करियर इन नागपुर और सेल्सफोर्स करियर इन पुणे और मुंबई, एंटर प्रेस कीजिए, आपको सबसे ज्यादा ह्यूज डिमांड दिखेगा सेल्सफोर्स का। Sir, next question is from Ritvik Singh. Ritvik Singh, what about the non-graduate? I think he is asking about कि अगर कोई non-graduate है तो क्या वो enter कर सकता है Salesforce? एंटर कर सकता है एज ए सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कॉग्निजेंट के कुछ एम्प्लॉइज है सर, कॉग्निजेंट के कुछ एम्प्लॉइज है, मैं लगता है तो उनसे सेशन में इंटरेक्शन भी करवा सकता था, लेकिन अगर पहले आइडिया रहती तो मेरे पास कॉग्निजेंट के एम्प्लॉइज की एक बैच है, ठीक है। मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है क्या सभी को? Yes, sir. सो जस्ट अ सेकंड। Till time, guys, if you have any question, please ask. Please share in chat box. You can unmute and question. Okay. Like few of the students have asked very good questions. Okay. Maybe I don't know when So- you will get chance like this. सो सभी को, एवरीवन विजिबल माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, सो देखिए सर, हम लोग जो करते हैं ना, हम लोग सिर्फ वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है कैंडिडेट्स को। मैं क्या करता हूँ, कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यूज भी लेता हूँ, ओके। और वो मॉक इंटरव्यू मैं खुद नहीं लेता हूँ, जो सेल्सफोर्स एक्सपर्ट्स है, जैसे कि परसिस्टेंट नागपुर, कॉग्निजेंट, टीसीएस में कुछ हमारे दोस्त लोग जो है एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर है हम लोग सभी जन, तो वो लोग इंटरव्यू इनका कंडक्ट करते हैं, जिन लोगों का कोर्स हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हो कितने पार्टिसिपेंट है इस ग्रुप में? टोटल 38 पार्टिसिपेंट थे इस पूरे के पूरे ग्रुप में, ओके। और आज एक कैंडिडेट का हम लोग ने मॉक इंटरव्यू लिया है, और वो मॉक इंटरव्यू, उसका कैंडिडेट का नाम ये रहा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सेल्सफोर्स का एक कॉग्निजेंट के एम्प्लॉइज का बैच है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट को ही ट्रेन करता हूँ, बराबर। ये रहा सेल्सफोर्स के कॉग्निजेंट के एम्प्लॉइज का बैच। और आपको बता दूं कि इस बैच में ये जितने भी लड़के आप देख रहे हो, ये सारे नॉन आईटी लड़के लोग हैं। इनमें से किसी का कोई जस्ट एक बीए पास आउट है, किसी ने सिर्फ बीकॉम करा हुआ है, ना वो इंजीनियर है ना कुछ है, लेकिन अभी ये फिलहाल, और ये लोग मेरे पास से डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है कॉग्निजेंट में। समझ में आया? ये सारे जितने भी आपको कैंडिडेट दिख रहे हैं, ये सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है, कॉग्निजेंट में लगे हुए हैं। तो अगर कोई नॉन आईटी पर्सन है तो वो अपने करियर की स्टार्टिंग सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर से कर सकता है, एंड देन वो मूव हो सकता है डेवलपमेंट में, ओके। तो ये सभी जन में से आपको बता दूं कि इसमें एक कैंडिडेट है दिलशाह खान, इनका प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये कैंडिडेट एक्सेंचर में प्लेस हो चुकी है और इनका पैकेज है 9 लाख पर एनम, ओके। ये एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर करके लगी है वहां पर। कुछ दिन पहले ये कॉग्निजेंट में एज अ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर करके थी। समझ में आया? क्लियर हुआ? सो ये है नॉन टेक्निकल वालों के लिए मेरा आंसर, ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। Yes, sir. Thank you. Guys, do you have any question? Kiran is having some questions, sir. इज एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स और डेवलपमेंट कोर्स इज डिफरेंट। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम लोग सिर्फ जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, हम लोग किसी टाइप का कोई डेवलपमेंट नहीं करने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली अलग हो जाता है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ कस्टमाइजेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस पे काम करना होता है, जिसमें आपको किसी टाइप का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, और है ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके। उसके बाद में आपके पास में डेवलपमेंट मॉड्यूल जब हमारा स्टार्ट होगा, तो डेवलपमेंट मॉड्यूल में हम लोगों को एपेक्स प्रोग्रामिंग और विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग में पढ़ाता हूँ, जिसके जरिए आपको डेवलप करना है सारी चीजें, ठीक है। जो काम आप एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो, उस काम करने की कुछ लिमिटेशंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को इग्नोर करने के लिए हम लोग को डेवलपमेंट आने को होना, बराबर। और डेवलपमेंट मॉड्यूल में हमें एपेक्स और विजुअल फोर्स ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने को होना। क्लियर?
उसके बाद में हाउ विल ऑटोमेशन इफेक्ट दिस जॉब इन फ्यूचर। सो आपको बता दूं कि अभी सेल्सफोर्स का ही जमाना है, आप चेकआउट कर सकते हो गूगल पे, है ना। मैक्सिमम जॉब सेल्सफोर्स पे ही है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इसलिए भरोसा मत रखो, गूगल है तुम्हारे पास में, ठीक है। बहुत से लड़के मैं ऐसे देखा हूँ कि जो इंजीनियर कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते या बीएससी बीसीए वगैरह कर लेते वो लोग, और वो लोग कैंडिडेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं से भी पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं वो लोग, बट वो लोग जब पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उनको 6 या 8 महीने देना होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, 3 महीना टेक्नोलॉजी खत्म करने के लिए, और उसके बाद में उसके ऊपर ब्रशअप करने के लिए, बराबर। लेकिन सेल्सफोर्स का ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स में अगर आपने डेली बेसिस पे डेली जो सेशन होते हैं उसके अच्छे से अगर प्रैक्टिस किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 महीना देना है। 2 महीने के बाद में आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, जो मॉक इंटरव्यू एक्सपर्टीज लेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि यार कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग आपको बोलेंगे आपका रिज्यूम अप कीजिए, ओके। तो उसी समय आपको अपना रिज्यूम अप करना है। उसके बाद में आपको मैं और एक चीज बता देता हूँ, है ना। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडिंग इज डिफिकल्ट इन एसएफडीसी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोडिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके की कोडिंग है। आपने जो जावा में देखे होंगे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो और आप लोगों के डाउट जो है वो शेयर करने के लिए मैं बता देता हूँ। जस्ट मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, विजिबल है ऑल कैंडिडेट्स। Yes. सो ये व्हाट्सएप दूसरा ही है। Yes. Still, if you have any question, please ask. Others. सो आपको अगर आप में से कितने कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कोई कैंडिडेट है ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या सिविल या कोई भी। सो देखिए सर हम लोग ने क्या करके रखा है, मैंने एक सेल्सफोर्स जॉब सीकर नाम से एक ग्रुप फॉर्म करके रखा है, ठीक है। और सेल्सफोर्स में हम लोग देखिए आपको जैसे कि जॉब की डिमांड बता रहा हूँ मैं, डेली बेसिस पे मैं इस ग्रुप में पोस्टिंग करते रहता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मेरे जो कैंडिडेट प्लेस हुए हैं उनके भी आपको ऑफर लेटर में बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ओके। सो इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग होती है नौकरी से रिलेटेड, जहां जहां पर भी जगह निकलती है। ये कैंडिडेट है सर हमारी, गौरी वराडे नाम है इनका, जो कि यलावंचली में थी पहले, ठीक है। इनका फीडबैक आप देख सकते हो, ओके। मैं इसीलिए कैंडिडेट को बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल जॉब पे लगा के नहीं दूंगा, क्योंकि कैंडिडेट खुद ही लग जाता है जॉब पे, ओके। उसको उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ना होता है। गौरी वराडे ये जो कैंडिडेट है ये नागपुर परसिस्टेंट में लग चुकी है, ओके। उसके बाद में और एक सेकंड कैंडिडेट है वनश्री निकुले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। इसका पास आउट है 2017 का, इसका पास आउट है 2017 का, ठीक है। सबके रिज्यूम भी है मेरे पास, सबके ऑफर लेटर भी पड़े हैं, ठीक है। कोई ऐसा रुकावट वाला कोई काम ही नहीं है, मैं वैलिड काम करता हूँ इसलिए मैं सारी चीज दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ये कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 2017 की पास आउट थी, ये भी लग चुकी है। उसके बाद में मेरा एक नेक्स्ट कैंडिडेट वैष्णवी करके है, आपको उसका भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये वैष्णवी पोहन है, ये कैंडिडेट भी 2017 NYSS कॉलेज से पास आउट कैंडिडेट है। लिंक्डइन पे आप इनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ओके। ये लगी है 360 डिग्री क्लाउड सर्विसेज, पुणे लोकेशन, बट अभी इन लोग का वर्क फ्रॉम होम है, ओके। और एक चौथी कैंडिडेट है, उसने इसमें कुछ अपना शेयर नहीं करा है, बट CMSS
करके एक कंपनी है मुंबई में, वहां वो लग चुकी है। समझ में आया? तो हम लोग देखिए, मैंने इन कैंडिडेट्स को टोटल, मैं डेली बेसिस पे देखो ये ऐसे डालते रहता हूँ पोस्टिंग कि यहाँ इतने जॉब निकल रहे हैं, यहाँ इतने जॉब निकल रहे हैं, आप लोगों को अप्लाई करना होता है। कितने मेल आईडी दिया इनको अप्लाई करने के लिए? इतने सारे मेल आईडी, समझे? इतनी सारी कंपनी में अभी भी वैकेंसीज हैं। इवन आप लोग ने अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना है, लेके रखो, डाल के देखो अपने रिज्यूम पोस्ट करो सेल्सफोर्स डेवलपर नाम से। आता भला ही कुछ ना हो चलेगा, बट डाल के तो देखो, पता तो चलेगा कॉल आता है नहीं आता है। ओके, सो हम लोग डेली बेसिस पे सर इस ग्रुप में हम लोग पोस्टिंग करते रहते हैं। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कैंपस जॉब रोल फ्रेशर्स निकला है 4,51,000 के लिए, सारे लोकेशन के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुप इसी के लिए हम लोग ने बना के रखे हैं। IBM में है करंटली हायरिंग सेल्सफोर्स डेवलपर, IBM पुणे, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। आपको अगर 1 year भी होगा, 2 year भी होगा, कोई घबराने की गरज नहीं है, सारा कुछ निकलते रहता है। ये यहाँ पर मांगा है 2 years एक्सपीरियंस। ओके, टेकीला ग्लोबल सर्विसेज आपने नाम सुने होंगे, तो वहां पर अभी भी फ्रेशर्स कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं वो लोग, समझे? सो ये थे मेरे आपके क्वेश्चंस के आंसर। आशीष सर देखिए, आगे और किसी कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक अगर क्वेश्चन guys, if you have any questions you can ask, otherwise we can wind up the session. Okay, and thank you very much sir, कि आपने बहुत ही useful information provide की है। And still if any question is there, so I will bring it with the student as well. Okay. Okay, so guys, we are winding up the today's session. Okay, thank you very much. Still, if you have any questions, you can call up. I shared one of the number there, 75586278586. Okay, for more details. Okay. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. थैंक यू सर। Thank you, sir.